So our next topic is auditor's duty regarding the review of internal control. Like what all are the things which the auditor needs to do over here, just to make sure that internal control is proper or not. What all are the things that the auditor needs to evaluate in this? So see, what is a basic responsibility lies with the management. Management is responsible for setting and operating whole of the internal control system. What the auditor will be doing it over here, the auditor needs to just evaluate the internal control system to certain things, whether he can rely on the internal control or not. वो सिर्फ इसके लिए ही चेक करेगा कि वो रिलाई कर सकता है या नहीं. द नेचर, टाइमिंग, वो कब कितने हद तक वो रिलाई कर सकता है, व्हाट इज द एक्सटेंट, व्हाट इज द नेचर, बिकॉज होल ऑफ दिस ऑडिट विल डिपेंड अपॉन दिस कि वो कितना रिलायबल है या नहीं. इंटरनल कंट्रोल अगर रिलायबल है तो इवन ही कैन यूज द सैम्पलिंग, ही कैन यूज द टेस्ट चेक एज वेल. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो इजीली द ऑडिटर कैन अडॉप्ट द टेस्ट चेक एंड ही कैन concentrate on more and more of the significant areas of the audit. But however, if the auditor is finding that internal control is weak, the auditor may have to take, or even he has to undertake the detailed checking of all the transaction. So therefore it becomes very much important for the auditor to evaluate whole of the internal control. So evaluation की duty किसकी है? Auditor की है. बट बेसिक सेटिंग अप ऑफ द इंटरनल कंट्रोल या तो ऑपरेशन की ड्यूटी किसकी है? ऑपरेटिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एज वेल एज सेटिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल की responsibility is of a management. It is not of an auditor. Auditor is not going to the company and set up the whole of the system. It is the management who will be setting it up the system. So the following are the duties of an auditor with regards to the internal control. So let's study this point wise. The first point is check whether there is a system, and if we have a system, the whether it is operational or not. Okay, so now it is a duty of an auditor to check whether the organization have a proper internal control system or not. और अगर internal control system है भी तो whether it is operational or not. See, the best example I wanted to just give you sometimes when you go to a bank ना, say for example आपको पासबुक अपडेट करवानी है. Even if their system is operating, चल रहा होगा सिस्टम, बट फिर भी आपको वो बोर्ड दिखेगा आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम सेटअप हुआ है बट तभी वो ऑपरेशनल में नहीं है. तो फर्स्ट बिफोर विजिटिंग ही जस्ट नीड टू चेक इट अप कि वेदर इट इज इन द ऑपरेशनल और नॉट. ओके, ही नीड्स टू चेक इट अप. दिस सेकेंड वन, he need to understand the system, because हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस का जो सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा. सिर्फ इन द प्रीवियस लेक्चर आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल फोन कि आप मोबाइल फोन पर इंटरनल कंट्रोल क्यों कर से, सो दैट आपका जो भी इंटरनल डेटा है वो प्रॉपरली सेफ रहे. नो वन एल्स कैन ऑपरेट इट अप, नो वन एल्स कैन चेक इट अप. तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट का जो ये होगा इंटरनल कंट्रोल वो अलग होगा. से फॉर एग्जांपल किसी एक ने फेस लॉक रखा होगा, किसी एक ने फिंगरप्रिंट रखी होगी, किसी एक ने पासवर्ड रखा होगा, किसी एक पर्सन ने वापस कोई पैटर्न रखी होगी. तो सी इट अगेन, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल. डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शिफ्टिंग इट अप. सेम वे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होगा वो जरूरी नहीं है. So auditor first go and needs to study and understand the system and evaluate whole of the system, and then he should decide whether to rely on the system or not. So how the auditor can study the internal control? कैसे वो study कर सकता है? Obviously he can do the discussion with the client. वो अपने क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकता है. वो क्या कर सकते हैं, जितने भी, सपोज इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होता है. तो वो क्या कर सकता है, हर एक के मैनेजर्स को, जितने भी कमिटीज है, हर एक कमिटीज के मैनेजर्स को जाके ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकते हैं एंड पूरा समझ भी सकते हैं कि कैसे आप जा रहे हो. Even apart from it, what he can do, organization की manuals होगी तो he can go through the manuals. Employees से पूछ सकते हैं, employees की handbooks होगी तो he can even refer the handbooks. Flow charts होते हैं क्लास कि हाँ ये say for example
Okay, we have a system manager, then we managers में sub managers have been divided. For the marketing we have a different manager, for the sales we have a different manager. So even he can study the flow charts. पता है आप जब malls में जाते हो, suppose it's a completely a new mall, तो सबसे जैसे एंट्रेंस के टाइप पर दे गिव्स अ कंप्लीट फ्लो चार्ट, दे जस्ट गिव द डायरेक्शन कि वेयर इट इज बिन लोकेटेड, कहाँ पर है, तो उससे आपको वो उसका इंटरनल सिस्टम पता चल जाता है कि हाँ, इफ आई गो टू अ थर्ड फ्लोर देन द गेमिंग जोन इज देयर, इफ आई गो टू अ सेकंड फ्लोर आई विल बी गेटिंग अ फूड कोर्ट. तो कैसे पता चलता है? थ्रू दैट फ्लो चार्ट. सेम वे द ऑडिटर कैन इवन सी द फ्लो चार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बस द बेस्ट वे, अगर उनको ये सब नहीं करना है तो द वेरी फर्स्ट एंड द बेस्ट वे इज दैट ही कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम, बिकॉज अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू सेट, who is setting up the system? Management is setting up the system. So if the best way is to interact with the management regarding this. ठीक है, बाकी का उसको इंफॉर्मेशन हमेशा दूसरों से मिल भी सकता है, मिल ही जाएगा ऑब्वियसली. सी क्लास, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइजेबल टू डिवाइड द वर्क. ठीक है, अगर एक जन के पास पूरा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसमें एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस आर हायर. बट वी हैव स्टडीड इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या बोलता है? डिविजन ऑफ द वर्क, प्रॉपर डिविजन ऑफ द वर्क इज रिक्वायर्ड. अगर डिविजन ऑफ द वर्क अच्छे से किया होगा तो आपको क्या लग रहा है मिलके इतने सारे जन फ्रॉड्स कर पाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं. अगर वही चीज किसी एक के हाथ में तो फ्रॉड होने के चांसेस आर क्वाइट हायर. बिकॉज अगर ऐसा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा कि जिसमें सारे मैनेजर्स, सारे जितने भी कमिटीज है, सारे मैनेजर्स आके फ्रॉड एक साथ कर रहे होंगे. ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि देयर शुड बी अ प्रॉपर डिविजन ऑफ द वर्क विच शुड बी गिवन इट. Third point is check the actual application. Now, what I mean by check actual application, the auditor should check the few transaction in depth. भले ही वो टेस्ट चेक अप्लाई कर रहा है या तो सैम्पलिंग ले रहे हैं, बट ही शुड चेक फ्यू ऑफ द सैम्पल्स और फ्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इन डिटेल्स एंड कंफर्म. उससे क्या कंफर्म हो सकता है? उससे ये कंफर्म हो सकता है कि कंट्रोल्स प्रॉपर है यानी दे आर एक्चुअली बिन अप्लाइड और नॉट. एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी सिस्टम होती है जो तुरंतली डिटेक्ट कर देती है. से फॉर एग्जांपल आप कभी भी देखो, if you go to the temples, if you go to the mall, then if they have a security system, वो पूरा आपका सबसे पहले security guard will be there in the entrance and he will be checking it up कि whether आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं लेके जा रहे हो अंदर. whole of the checking system is there. ठीक है, तो चेकिंग सिस्टम में क्या होता है, पहले ये देखा जाता है कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल इसका कैसा है. और देखो, अगर इफ यू आर कैरिंग एनी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट बीन अलाउड तो तुरंत वो वार्निंग साइन आ जाती है. सेम वे इवन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सिस्टम वेयर दे गेट अ वार्निंग साइंस. See, the auditor may do this. The auditor may check whole of the purchase के transactions. वो क्या करेगा? पूरे परचेज के ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं. इवन ही कैन आस्क फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम द रिक्विजिशन, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हो परचेज के लिए? यू गिव द रिक्विजिशन ऑर्डर टू योर सप्लायर. सो रिक्विजिशन ऑर्डर से लेके पेमेंट तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ही कैन चेक इट अप. So ideally there should be a proper internal control which should be set up by the company at every stage. हर एक स्टेज पर एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए. So that while performing this checking, we should verify कि internal control भी properly applied हुआ है या नहीं हर एक स्टेज पर. Okay. Next point is evaluation. The auditor can evaluate whole of the system on that basis and decide how much he can rely on it. ठीक है, उसका रिलायंस कितना उसको रिलाय करना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली ऑन द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेट द वीकनेसेस टू द मैनेजमेंट. सी, जो भी मटीरियल वीकनेस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. सो एनी इंपॉर्टेंट एरियाज इज देयर वेयर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक. तो ऑडिटर क्या करना चाहिए? ऑडिटर नीड्स टू कम्युनिकेट. इधर इट कैन बी डन ओरली और इट कैन बी डन इन द रिटर्न वे एज वेल टू द मैनेजमेंट. Even the auditor may suggest some of the suggest the ways and they can strengthen the internal control system accordingly. वो suggestions देने का काम होगा ऑडिटर का, but actually में it will be the responsibility of a management only to strengthen the system. Auditor can even request, ऑडिटर को रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है
you please give the letter of representation from the management कि whether if there is a weakness of internal control or not. Internal control में अगर कुछ weaknesses है तो he can even note it down all the points and then he can communicate with the management as well. And the last point is reporting under CAHI. Now the auditor is required to report regarding the internal control system, how it is there. Regarding देखो सबसे ज्यादा internal control system हमें कहाँ पर लगता है पता है? During the time of the purchase of the inventories and the fixed assets, or you can say even during the time of the sale of the goods. So he needs to report over here कि whether the internal control के जितने भी procedures are there, they are completely followed or not. And all those are depending upon the size and the nature of company or not. Whether there is continue, देखो अगर suggestions दे रहा है पर फिर भी improvement नहीं हो रही है, and again they are finding out the failures and the weaknesses in the internal control system, so auditor can directly report under the CARO regarding the system. तुरंत से report बना सकता है. Now, apart from it, can you all tell me some other points which we can, what will be the, आपको क्या लगता है इसके अलावा भी कुछ क्या auditors की duties है regarding the review of internal controls? Just answer me in the chat box. Yes, you can add up this point as well, that auditor, it will help the auditor to decide about how much to rely, कितना rely करना है, कितने तक rely करना है, because it is not possible na to vouch each and everything in the detail when the number of transactions are quite large, or even auditor cannot check each and every transaction. A detailed audit is not even necessary. Yeah? ठीक है, जब अकाउंट्स कंप्यूटराइज ही है तो फिर डिटेल चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो कंप्यूटर में ही फिट होता है. अगर आप टैली में भी करो तो तुरंत आपको वहां से भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो इन सच केसेस अगर प्रॉपर स्टडी हुआ होगा इंटरनल कंट्रोल का, तो ऑडिटर को वो हेल्प करेगा टू डिसाइड कि कितना, एज आई टोल्ड यू, कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कितना, क्या, कौन से नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट तक हमें वाउचिंग और वेरिफिकेशन करना है, कितना चेक करना है, ये वो इजीली डिसाइड कर सकता है. So what he can decide what to check, when to check, and how to check, and how much to check as well. And if the internal control is reliable, he can use the test check and concentrate on some of the areas, important areas. Okay, so these are the duties of an auditor, which is regarding to the internal control.